আচ্ছা মানে আমাৰ অথৰিটিৰ আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত আওকাণ কৰা আমি দেখি আহিছোঁ। আমাৰ টিচাৰ এছ'চিয়েশ্যনখন আমাৰ 2018 চনত ছাৰহঁতে ক'লেই যে কি গঠন কৰা হৈছিলে, তাৰপাছত আমাৰ সেইখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাই হোৱা বুলি গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি তেখেতে ক'লে। আমি যদি গ্ৰুপত এছ'চিয়েশ্যন হৈ লৈ কিবা ইছ্যু লৈ পেলাই তেখেতৰ ওচৰলৈ যাওঁ, সেইখন তেখেতে একচেপ্ট নকৰে আৰু আমি ইণ্ডিভিজুৱেলি আমাক যাবলৈ কয়। আৰু ইণ্ডিভিজুৱেলি যিহেতু আমাৰ এইটো এটা সকলোৰে প্ৰব্লেম, আমি ইণ্ডিভিজুৱেলি যাবলৈ নোৱাৰোঁ। আমি তেখেতক এইখিনি কথা জনাইছোঁ আৰু আমি মেইল যোগেও সকলোৱে তেখেতক এইখিনি সমস্যাৰ কথা জনোৱা হৈছে। আৰু বাকী আছে পানীৰ প্ৰব্লেম আৰু আমাৰ একাংশ শিক্ষকৰ যিটো চেলাৰী প্ৰব্লেম, আচলতে ইনক্ৰিমেণ্ট যিটো প্ৰাপ্য সকলো শিক্ষকৰ সেইখিনিৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে। তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমি বিচাৰিছিলোঁ যে আমাৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰক, যিকোনো এটা মানে যিমানখিনি ইছ্যু আছে সেইখিনি গোটেইখিনি কথা পাতক আমাৰ লগত, কি কৰিছে তেওঁলোকে কিবা ভাবিছে নেকি। আৰু সেইখিনি আমি সঁহাৰি তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আমি আচলতে পোৱা নাই। আৰু যিহেতু পোৱা নাই, আমি সকলোৱে আলোচনা মৰ্মে আমাৰ শিক্ষকসকলে আৰু বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও যথেষ্ট মানে মই হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেনো হয়, যিটো আমাৰ একমাত্ৰ এটা হোষ্টেল আছে সুধলতা দুৱাৰা গাৰ্লছ হোষ্টেল, সেই হোষ্টেলটোৰ ৱাৰ্ডেন হিচাপে ময়ো বহুতখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। হোষ্টেলৰ পানীৰ পৰা আদি কৰি যথেষ্টখিনি প্ৰব্লেম তেওঁলোকে ছল্ভ কৰিছে, নকৰাও নহয়, এনেকুৱা নহয় যে প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰা নাই, কিন্তু পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন এটা লাগে। আৰু সেইখিনি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি সদায় মোক ফোন কৰে, মেম এমুকটো হোৱা নাই, তমুকটো হোৱা নাই। ময়ো যিখিনি পাৰোঁ কৈছোঁ অথৰিটিক, আৰু অথৰিটিয়ে যিমানখিনি দিব লাগিছিল হয়তো সিমানখিনি দিয়া নাই। আমি সকলোৰে হৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, আমি শিক্ষকসকলৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি সমস্যা আছে আমি সকলোখিনি লৈ পেলাই আজি এই প্ৰতিবাদটো কৰিছোঁ, মানে শান্তিপূৰ্ণভাৱে। তেনেকুৱা যেনেই লাগিছে আমাৰ, তেনেকুৱাকেই কৰে। যিহেতু যদি তেওঁ মানে সকলোৰে বিচাৰিলেহেঁতেন, আমাক আলোচনা কৰিলেহেঁতেন, আমি এখন বৈঠক পাতিলেহেঁতেন, আমি সকলোৱে মতামত দিলোঁহেঁতেন। নুশুনে বুলি মানে তেখেতে আলোচনা কৰিলেহে আমি ক'ম, তেখেতে নজনোৱাকৈ সকলোখিনি হয়। আমি আমাৰ ফালৰ পৰা কিন্তু যি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ লিখিত গৈ আছে, ইণ্টিমেশ্যন দিয়া হৈছে যে আমি এইটো কৰিবলৈ যাম ছাৰ। তেখেতক মানে হাৰ্ড কপিও দিয়া হয় আৰু মেইল কৰি পেলাই দিয়াও হয়। আজি বহা ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকলৈ দিয়া হৈছে, আৰু তাৰ কোনো এটা ৰেছপন্স এতিয়ালৈকে আমাৰ 1-1.5 ঘণ্টা হৈ গ'ল আমি বহি থকা, আমি একো পোৱা নাই। इसमें क्या है, टोटल 31 टीचर्स हैं हमारे, उसमें से 18 लोग 18 वो नया नियुक्त हुए। 2017 में कुछ लोग 19 में नियुक्त हुए। उनका क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उनको पीएचडी और एमफिल का इंक्रीमेंट एज़ पर यूजीसी रूल है। वो एक्चुअली हमको क्या है, सैलरी कंपोनेंट होता है, गवर्नमेंट जब देगा तब हम लोग इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमने गवर्नमेंट का लेटर लिखा, अभी तक पैसा उनसे आया नहीं, हमको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। जब तक गवर्नमेंट नहीं देगा वो हम लोग वहाँ दे भी नहीं सकते। मैंने डीएचजी में गया, एजुकेशन सेक्रेटरी से मिला, नारायण कन्वर से मिले, रणोज पेगू जी से मिला, उनको रिप्रेजेंटेशन भी किया, बात भी किया। ये इशू है हमारा 18 अध्यापकों का। तो बोला गवर्नमेंट ने अभी तक पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया है, तो जब तक पैसा नहीं आएगा, हम मना नहीं कर रहे, हमारे पास पैसे जो होता है सेविंग वो देने के लिए नहीं होता, वो तो डेवलपमेंट के लिए होता है। ये सैलरी कंपोनेंट है तो हर महीने हमको देना पड़ता है, तो जब तक गवर्नमेंट नहीं देगा हम लोग इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। एक बात और, आप सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में नहीं, जैसे बातों में उनको पूछे सर्जिकल स्ट्राइक शब्द प्रयोग करने से हो जाएगा, मैं आपको मार दूंगा ऐसा बोलेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, ऐसे ही होता है क्या? आपने बोला था क्या सर्जिकल स्ट्राइक? नहीं, उसमें क्या है, बातों में इनको नहीं बोला आपके ऊपर करेंगे, ऐसे नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। आपने बोला कि सर्जिकल स्ट्राइक करने का नहीं, शब्द प्रयोग करने से सर्जिकल स्ट्राइक मतलब इफ क्या बोलते हैं उसका, हाँ नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक मतलब क्या है, जब आएगा, गवर्नमेंट भी नहीं कहा था सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, कर दिया, ठीक है, मतलब क्या है, बोले मतलब सिचुएशन जब वारंट होगा हमारे हाथ में निकलेगा, उसका लिमिटेशन होता है ना, हर एक आदमी का एक पेशेंस लिमिट होता है। उसका मतलब नहीं है कि हमें अभी तक देखे, अभी तक मैंने उनके एक्शन कुछ नहीं लिया है। वो जो कर रहे हैं उससे में बहुत शब्द आते हैं, उसे अर्थ नहीं है कि वो क्रियान्वयन होता है। वो लोग बाहर बैठा हुआ है, आप बाहर से अंदर तक आ गए, बात भी नहीं पूछा क्यों बैठे? नहीं, उनको इंटीमेशन नहीं दिया, पहले बार हमको इंटीमेशन नहीं दिया। ये तो बोला कि आपको दिया, नहीं, हार्ड कॉपी कब, मैं आने के बाद मिला मुझे, 1 डे बिफोर में नहीं, पहले अभी दिखा, मैं जब आया है उसके बाद लेटर आया, मेरा सामने आदमी आके लिया है।
इधर और एक प्रॉब्लम है कि पानी का समस्या है। नहीं, पानी की नहीं रहता। जब पेपर में भी आया, आप भी जानते होंगे, पेपर में भी आया। उसके बाद हमने जल जीवन मिशन जो है उसकी जो हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर है उनसे भी हमने रिप्रेजेंटेशन किया, और PHE जो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, वहाँ भी हमने लेटर लिखा। थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला हमको, हम भी कोशिश कर रहे हैं। तो कॉलेज का जो आप लोगों का ये जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके अंदर जो लिखा होता है कि आपको इधर ही रह के ड्यूटी करना पड़ता है, ऐसा नहीं लेकिन है। आपको गुवाहाटी से आता जाता रहता है। 10 साल पहले जो थे वाइस चांसलर दीपक शर्मा जी थे, वो भी यहाँ नहीं रहे 10 साल। हाँ, वो गुवाहाटी से आते रहते, गुवाहाटी से डेली ऑल द 10 years ही वॉज देयर फॉर 2 term। एक बिल्डिंग यहाँ गवर्नमेंट ये नहीं बना क्या VC के लिए, तो यहाँ रह नहीं सकते। 10 years नहीं बना, अगर होता तो यहीं रहते हैं हम लोग। और कोई भी बात हो आप स्टाफ से डिस्कस नहीं करते? नहीं, डिस्कस आप डिसीजन लेते हो? नहीं 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 नहीं, एकेडमिक जो मैटर्स है उनके साथ ही डिस्कस होता है। एकेडमिक मैटर्स, एडमिनिस्ट्रेशन में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेशन में अथॉरिटीज़ होते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है। अपने ख्याल खुशी में से काम कर आपका रहे ख्याल उसी में काम चल रहा है? कैसे कैसे उदाहरण कोई बताए आप, वो उदाहरण कोई कॉलेज का प्रतिष्ठा दिवस आज था, हाँ। आप कल मना रहे हैं 25 तारीख। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं है, कल ही है। एक्ट देखा आप लोगों ने, एक्ट में क्या है, एस्टेब्लिशमेंट 25 इससे पहले 11 साल तक नहीं, वो गलत है एक्चुअली, वो गलत निर्णय लिया। क्या है 15 नवंबर, क्या 15 नवंबर जिया, उसका कारण क्या है उन्होंने नहीं बताया। 15 नवंबर को क्यों मनाया गया, उसका कारण कुछ बताया उन्होंने, आपको पता है क्या? एक्ट में क्या लिखा है, मैं आपको एक्ट भी दिखा दूंगा। एक्ट वाज एनेक्टेड ऑन 25 मई 2011, उसमें लिखा है एस्टैब्लिश्ड, तो उसका मतलब क्या होता है, उसी दिन हमको करना पड़ेगा। अभी ऐसे जो इधर वी कैनॉट चेंज। बैठा है आपका स्टाफ, अभी आप क्या मतलब क्या डिस्कस कर रहे हैं? नहीं, डिस्कस इशू नहीं है। हम बोले 2 मेन इशू उनका, जो इंक्रीमेंट वाला है ना, वो बोले हम जब तक हम गवर्नमेंट से आएगा तब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इशू तो दो नहीं है, काफी है। वो बोला जो इधर काम होता है सिर्फ आप भी आपके नहीं, ऊपर वो ही कैसे, भरोसा कौन से करते हैं। वो आपका जो बात है किसी को नहीं सुनने देता। आपका नहीं नहीं, इशू सुनिए, है, ऐसा नहीं है, ये आप लोग शायद गलत बोले। कुछ उदाहरण, बोला, लोग बाहर नहीं, बैठे कुछ आपका उदाहरण स्टाफ दिया आपको, कैसे क्या, कुछ एग्जांपल दिए क्या, क्या किया हमने, ऐसे क्या काम किए हमने जो लोग बोल रहे हैं उनको विरोध हो रहा है। एज पर जो हमारे, देखिए हम यहाँ जो बैठते हैं, एनीबडी BC पोस्ट में बैठता है, उसको क्या है, एक्ट, स्टैट्यूट्स, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, ये हमारा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। मेरा मनमानी नहीं चलेगा इधर, मैं जो भी चाहता हूँ ऐसा नहीं कर सकता। एक्ट में जो कहा जाता है ना, आपका स्टाफ भी बोल रहे हैं आप मनमानी करते हैं। नहीं बोले आप उनको, जो बोलते हैं देखिए वही होता है। मैं बोलता हूँ, वो एक्ट कोई नहीं पढ़ा है उसमें, आप जानकारी लीजिए, एक्ट कोई पढ़ा है क्या? एक्ट में क्या लिखा है, 2011 25 मई को एस्टैब्लिश हुआ है, गवर्नमेंट लेजिस्लेशन से एस्टैब्लिश हुआ ये है। जो 24 बोला, ये जो मतलब ये 25 किया प्रतिष्ठा। नहीं नहीं, 25 है, नहीं 25 है, लेकिन इससे पहले 10 साल हाँ, नहीं, नहीं, मेरे को मनाया नहीं इधर। नहीं 25 का नहीं, 15 नवंबर को मनाया जाता था। लेकिन ये मतलब किसने चेंज किया? ये लोग चेंज किए, एक्चुअल चेंज करने के लिए नहीं है। आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, वो क्या आप चेंज कर सकते हैं? कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। इसमें देख, 25 होता है। ये देखिए गैजेट नोटिफिकेशन क्या लिखा है, नवंबर था। 25 मई 2011। नहीं, पहले तो 15 नवंबर को मनाया था। वो नहीं मनाना चाहिए था, चेंज किए, वो गलत किया। मतलब पहले से ही गलत था। हाँ, पहले से गलत थे, वो गलत थे। आपने ये किससे ये क्या देखिए 15 नवंबर, ये जो पहला VC ज्वाइन किया ना, 15 वहाँ लिखा है देखिए, उस दिन को वो लोग प्रतिष्ठा दिवस मानते हैं। एक्चुअली 15 नवंबर को उन्होंने ज्वाइन किया, पर जब एस्टैब्लिश हुआ, फर्स्ट ऑफिसर होता है चांसलर, मतलब जो भी ये हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन चांसलर, VC नहीं है। सर ऐसा है क्या, जो इधर ज्वाइन करता है नौकरी में, आपके पास भी कोई आएगा, हाँ। कोई दिन क्या वो प्रतिष्ठा दिवस मनाएगा? नहीं होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ये गलत किया है यहाँ पर। एक्चुअली क्या है, ये मैं ज्वाइन किया 4 अगस्त, मैं चेंज कर सकता हूँ क्या? ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा होता है। एक्ट का जो अब ये होता है, इसी को डेट हम लेते हैं। ये भी नहीं है, 24 भी नहीं, 16 को गवर्नर ने साइन किया, 24 नोटिफिकेशन इसमें गया, क्या प्रेस में गया, प्रेस में ये डेट आता है 25 में। जैसे हमको UGC रेगुलेशन आता है ना, उसमें भी हम लोग यही कहते हैं 2018 रेगुलेशन, उसमें होता है। उस एक्ट पर एक्ट ही हम कर रहे। देखिए मैं जो भी करता हूँ, दिस आई हैव रेड फॉर 10 to 15 टाइम्स। मैं आपको यहाँ कोई भी इसको पूरा नहीं पढ़ा,
इसी के हिसाब से हमको कर रहे हैं। देखिए सर, आपका ऊपर में एक कंप्लेन लेकर आपका पोलिंग और प्रोफेसर ने प्रोटेस्ट किया है, आपने इसके साथ डिस्कस नहीं किया है, इसे कामकाज चल रहा है आप? नहीं, बहुत बार डिस्कशन हुआ है, मुद्दा एक ही है। वो तो प्रोटेस्ट किया है, डिस्कस हुआ कि नहीं, इसमें बाद में हुआ है। मैंने उनको बोला ये जो इशू है वो ऑलरेडी उनको बोला भी है, क्योंकि जो मेरे हाथ में नहीं है, फॉर एग्जांपल सैलरी वाला जो है ना, जो इंक्रीमेंट वाला, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। तो कि अभी अगर दे 1 करोड़ 20 लाख कुछ अरियर्स देना पड़ता है और हर महीने हमको पैसा देना, वो कहाँ से लाएंगे? ये सैलरी कंपोनेंट है, जब तक गवर्नमेंट देगा। आप पूछिए डीएचसी में, मैंने जो डीएचसी डिप्टी डायरेक्टर है धर्मकांत मिली जी से मिला, तालुकदार मैडम से मिला, सबको मिल के आते। जब भी मैं जाता हूँ खानापारा दिसपुर, सबसे मिलता रहता हूँ। हमारे तरफ से कोशिश हुआ है, इससे पहले मेरे आने से पहले कोशिश नहीं हुआ। आप पूछिए उनसे, कोशिश किया गया क्या, पूछिए उनको। मैं आने के बाद कोशिश किया हूँ, मेरे पास लिस्ट है कितना हमने तैयार किया। हमारा अकाउंटेंट से पूछिए, वो लोग भी भेजता हूँ, 2 महीने में एक बार भेजते रहता हूँ। पूछ क्या है, क्या हुआ, क्या करना चाहिए, कोई फॉर्म भरना है कि वो भरना है, ये सब करते हैं। हमने कोशिश किया। उनको ये पूछिए अगर जाके आप, इससे पहले जो थे वो लोग कुछ कोशिश किया क्या? नहीं, हमने जितना कोशिश किया शायद नहीं किया गया। उन्होंने तो बोला है आपने डिस्कस नहीं किया है। डिस्कस क्या है, एकेडमिक मैटर्स से टीचर्स के साथ डिस्कस किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स नहीं किया जाता है। कोई ज़रूरत भी नहीं है उनके लिए। जो है एकेडमिक मैटर्स, सिलेबस बनाना, एनईपी के हिसाब से सिलेबस बनाना, ये सब उन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं। मैं खुद निर्णय नहीं लेता हूँ। जब मीटिंग में जाता हूँ, जो भी आता है इनको हम सौंप देते हैं। एक कमेटी बनाए, एक आदमी है, वो सब बैठते हैं, डिस्कस करके हमको रिपोर्ट देते हैं। एकेडमिक मैटर्स रिलेटेड विद टीचर्स, ऐसे हम करते हैं। जब जब मीटिंग, मैं आने के बाद डिपार्टमेंटल मीटिंग चालू किया। एवरी वीक रोटेशनली डिपार्टमेंट मीटिंग किया जाता है। जो भी है उनके पास ही जाते हैं हम लोग, कभी यहाँ बुलाते कभी वहाँ जाते। हम प्रोटोकॉल भी मेंटेन नहीं करते, उनको यहाँ बुलाना ऐसा नहीं। मैं खुद चला जाता हूँ, क्लासेस चलता है कि नहीं, क्योंकि आवर मेन स्टेक होल्डर्स आर द स्टूडेंट। उनको धोखा नहीं होना चाहिए। वो यहाँ पढ़ाई होता है इसलिए आता है, एक भी क्लास छूट ना जाए इसलिए हम भागते रहते हैं। एक्चुअली ये ड्यूटी मेरा नहीं है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का होता है। फिर भी मैं जाता हूँ, हर एक क्लास में जाता हूँ, अंदर भी नहीं जाते हम। बाकी जो सीसीटीवी लगाते हैं हम, वो भी नहीं लगाए। हम क्या किए, ये भी गलत नहीं है, क्योंकि मेरा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक ये है। बीसी के बाद एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। मेन हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन गवर्नर होता है। मैं सब आपको एक्ट दिखाता हूँ, इसमें लिखा है। धन्यवाद আপোনালোকৰ প্ৰশ্নটোৰ বাবে। আচলতে আমি কেইবাটাও ইছ্যু লৈ বহিছোঁ। ছাত্ৰ সমাজ আৰু শিক্ষকসকলৰ যিখিনি সমস্যা দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আছে, সেই সমস্যাসমূহ কোনো সমাধান নোহোৱাৰ কাৰণে আচলতে আমি বহিব লগা হৈছে। আমাৰ প্ৰথম সমস্যা আমি দেখিলোঁ, এমফিলৰ ছাত্ৰসকলক তেখেতে প্ৰমোট কৰিলে মৌখিকভাৱে PhD লৈ, কিন্তু তেওঁলোকক আজি প্ৰতি কোনো নটিচ নিদিলে। দ্বিতীয়তে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত খোৱা পানীৰ যি সমস্যা, সেই সমস্যা সম্পৰ্কে আমি অৱগত কৰাৰ পাছতো তেখেতে আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰা আমি দেখা নাই। অন্যহাতেদি আমি যেতিয়া তেখেতৰ ওচৰলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা শিক্ষক সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা লৈ গৈছোঁ লিখিতভাৱে, তেখেতে শিক্ষক সংস্থা নৎসাত কৰিছে পঞ্জীয়ন নোহোৱা বুলি। অথচ এই শিক্ষক সংস্থাই বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীত আমি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। গতিকে সেই শিক্ষকসকলক তেওঁ নৎসাত কৰি, শিক্ষক সংস্থাক নৎসাত কৰি তেখেতে কি কৰিব বিচাৰিছে, চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক কৰিম বুলি শিক্ষকসকলৰ এগেইনষ্টত এই শব্দটো প্ৰয়োগ কৰিছে। গতিকে আমি খুব মৰ্মাহত হৈছোঁ। আৰু আমাৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো আমাৰ 15 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছিল। 11 বছৰ, এতিয়া আমি 12 বছৰ আমি পাতিব লাগিছিল, নকৰিলে। তেখেতে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে যে 25 তাৰিখটো বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, কালিলৈ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস তেওঁ পাতিবলৈ লৈছে। আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ কমিটিত ভাগ কৰি দিছে, আমি কাম কৰিছোঁ, দায়িত্ব নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰিছোঁ। কিন্তু আমাৰ জানিবলৈ মন গৈছে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো কি কাৰণে ডেটটো সলনি হ'ল, আৰু সেই তাৰ এখন নটিফিকেশ্যন আমাক উলিয়াই দিয়াটো বিচাৰিছিলোঁ। আমি লিখিতভাৱে আবেদন দিছিলোঁ, তাতো তেওঁ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে। আনকি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা লৈ গ'লেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কোনো সমস্যাকো তেখেতলোকে যেনেধৰণে গুৰুত্ব দিব লাগে তেনেধৰণে গুৰুত্ব দিয়া নাই। আজি যেতিয়া আমি ইয়াত বহি আছোঁ, য'ত শিক্ষকসকল বহিব লাগে নিজৰ হেৰিয়ত চকীত বহিব লাগে, সেই শিক্ষকসকল তেওঁৰ ঘৰৰে কনিষ্ঠ সদস্য। সেই কনিষ্ঠ সদস্যবোৰ কিয় তলত বহি আছে, কি হৈছে, সেই কথাটো জানিবৰ কাৰণেও এতিয়া প্ৰায় 1 ঘণ্টা হৈ গ'ল, তেখেতৰ কিন্তু আহৰি নাই হোৱা। গতিকে আমি আমাক অপদস্থ, এতিয়াতো অপদস্থ কৰিলেই,
পোনপটীয়াভাৱে এতিয়ালৈকে আমাক গুৰিলৈ অহা নাই আহি যাওঁতে আমাক কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই আমালৈ চোৱাও নাই আৰু আগতে যিহেতু আমাক চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক কৰিম বুলি ক'লে এছ'চিয়েশ্যনৰ হৈ যাওঁতে গতিকে আমি এইটো অপদস্থই ফিল কৰিছোঁ আমি অসম আৰু অসমীয়া জাতীয়তাবোধ থকা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে আমি চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক শব্দটো কি অৰ্থটো বুজি পাওঁ উপলব্ধি কৰোঁ আৰু আমি সন্ত্ৰাসবাদী নহয় শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত যদি এইটো হয় তেতিয়াহ'লে অপৰাধীৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব কেনেকুৱা শব্দ প্ৰয়োগ কৰিব ষ্টুডেণ্টবোৰ সেইকাৰণে নহয় এতিয়া তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা নাই আজি পৰীক্ষা নাই